Again. So today we are going to start a very special class, Deepak ji, and all my students. I didn't inform early, but there is a surprise for you all. One of my mythological guru, and he has immense knowledge about Indian mythology and Western mythology, and he is Mr. Prasanth Panda. So he is as a guest of honor today, and he is going to talk about the critical analysis of Mahabharata. पंडा जी, पंडा भाई आपको सुनाई दे रहा है ना पूरा? हाँ सुनिए आराम से। हाँ सर। Okay, so today I'm just going to inform to you all that the first 40 minutes that we are going to talk about this Indian mythology and some to an extent about the guru, the sage Vyasa, and some critical analysis of Mahabharata, and he's our guest of honor today, Panda sir. So this after 30 minutes, then I'm going to take your classes about some thumb rules about the Lagna Kundli and all. So let's start. I think everybody has joined and few of the students has about to join. So sir, Panda sir, you can start right now. Namaste to you. Okay. तो अदर जो स्टूडेंट्स है इसको फेस नहीं है गाय, दे ओनली लिसन. हाँ, they will listen only. Their video is not on. Pritam, switch on your video. Everybody switch on your videos. Suman ji, switch on videos. There is a surprise today. My mythological guru, Panda, Mr. Prasanth Panda is going to talk something about mythology of Indian mythology and the critical analysis of Mahabharata. 30 minutes we'll talk. Then I'll start my astrology classes. Let us start, sir. ओके, वन तत्सत. मैं आपको सुने दे रहा है? जी सर. प्रणाम सर, प्रणाम. या प्रणाम. बहुत अच्छा है. तो मैं शुरुआत में गुरुनांग गुरु जो है व्यासदेव, इसको प्रणाम करके, और आप सब इसको भी प्रणाम करिए, बिकॉज वो व्यास जो है वो एक ही आदि में है. अभी म्यूट हो गया, आपका म्यूट हो गया पंडा सर. सर आपका म्यूट हो गया. थैंक यू. बंद कर दो, बंद कर दो. सर आपका म्यूट है. सर आप म्यूट है. सर आप म्यूट है. महाभारत के वजह, हाँ अभी आया, अभी आया. हाँ, महाभारत के वजह से हमको द कर्नेल ऑफ ऑल थॉट्स, द नेक्टर, दैट इज भगवद गीता, जो स्वयं श्री कृष्ण से मुख से युद्ध क्षेत्र में ही बोला गया था. कुरुक्षेत्र युद्ध फील्ड में जिस टाइम ने महारथी अर्जुन विषाद योग से चला गया, इसको क्लैरिटी देने के लिए इसको फिर rejuvenate him and through him he gave the message to the whole mankind, to the entire universe. What is science, what is religion, what is ethics, what is code of conduct, what is life, what is karma yog, what is dhyan yog, what is gyan yog, everything he explained in Bhagavad Gita. And that is because of, and it is also narrated inside Mahabharata. Bhagavad Gita is a part of Mahabharata. And इसका सबसे अच्छा है तो कर्म योग. एंड महाभारत में जो शांति पर्व है, आपको जानते होगा शांति पर्व, जो भीष्म जिस टाइम ने सरसज्जा में आ गया, सरसज्जा में इसका तो इच्छा मृत्यु मिला था. इज द ओनली वन till we know in this mortal world
इसको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। तो मोर्टल वर्ल्ड में जो भी आएगा, भगवान भी स्वयं आएगा कुछ इनकारनेशन में, इसको भी मृत्यु होगा। लेकिन भीष्मदेव इतना महान है, वो अष्टवसु से एक ही है। अष्टवसु वो बाद में बोलेंगे, अष्टवसु से एक ही है। जो 8 वसु है, तो वसु से भी एक श्रेष्ठ वसु है देवव्रत भीष्म जी। इसको मिला था इच्छा मृत्यु, लेकिन वो अंतिम काल में स्वयं इच्छा मृत्यु वरण कर लिया। नहीं तो इसको मानने वाले कोई विश्व में नहीं है, स्वयं भगवान भी इसको नहीं मान सकते। इतना ही पावरफुल। इसको वो भीष्मदेव सरसज्जा में पढ़ते हुए जो सरमन्स, जो मोरल टीचिंग्स हमको भीष्म पर्व में, शांति पर्व में दे दिया, भीष्म पर्व में दे दिया, इसको हर आदिम, एटलीस्ट ऑल इंडियंस शुड रीड। तो मेरा कहना का बात है कि व्हाई in this modern age, what is the need of reading Mahabharata? Number one. And what is second thing? It is written some thousands years ago. Why it is relevant today? And what we learn? And in my analysis, that it was relevant, it is now relevant, and for ages to come, the teachings of Mahabharata will definitely be a source of light, a beacon of light, a code of conduct for the whole universe, so that if the people will adhere to the principles laid down in the form of a story or in the form of a description or in the form of a novel, whatever it may be, you can tell me that is epochal writings that is reflected in Mahabharata, in the pages of Mahabharata. It gives us the moral code of conduct. हमको जीवन का जो आर्ट सिखाता है, बहुत बड़ा बात है, आर्ट ऑफ लिविंग हमने महाभारत से मिलता है। हेलो, हाँ सर, बहुत सही। यस सर। अच्छा, तो माय पॉइंट, मैं 2 पॉइंट्स पहले दिया। सर का म्यूट हो गया सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ठीक, मैं कुछ कहानी बोलेंगे जी। वो कहानी के आई विल टेल सम स्टोरीज अबाउट दिस, सो दैट इनसाइड द स्टोरी यू विल गेट ऑल द टीचिंग्स। जिस टाइम ने महाभारत का शुरुआत नहीं हुआ था, मैं एक बहुत अच्छा कहानी आपको सुनाना जा रहा हूं। जो भगवान कृष्ण ने एक प्लेस का संधान में था, जो कहां से वो युद्ध होगा। तो फाइनली वो कुरुक्षेत्र भूमि को, कुरुक्षेत्र वाले फील्ड, इंद्रप्रस्थ के दूर से, जहां से एक लोनली फील्ड था, बुशी फील्ड, इसके आसपास का इलाका में भी कोई जनबसती नहीं था। So that it was an ideal location for fighting the war. जो वो बहुत स्थान घुमा और घूमने के बाद वो कुरुक्षेत्र का फील्ड इसका नजर आया और पसंद आया। जो whenever he chose that, the day it was evening time, he chose and finalized along with others that yes, it is the ideal place. I select this place so that tomorrow this war between two fronts will be fought in this field. So जिस टाइम ने वो डिसीजन कर दिया, जो एट दैट टाइम द सेम डे ए स्मॉल बर्ड, इसका नाम है भरतिया, आप इसको स्पेरो बोल सकते हैं, इसका जूलॉजिकल नाम भी अलग है, स्पेरो। एक छोटा का स्पेरो, मदर स्पेरो, हेड लेड, अंडा दिया था। इसका 2 अंडा एक बूस में, आई टोल्ड यू दैट इज ए abandoned field and a bushy area, so जो सब
चिड़िया हैं जो बर्ड्स, they generally prefer these bushy areas, lonely places to lay their eggs, so that very peacefully they can rear their offspring. तो भर्तिया पक्षी एक छोटा सा पक्षी है, वो मदर बर्ड यहाँ से के बूस में एक छोटा सा नेस्ट बना के यहाँ से इसका अंडा दे दिया, 2-4 अंडा दे दिया था। मुझे जो ज्ञान है 2 अंडा था, तो 2 अंडे में वो मदर बैठा था इसका ऊपर। इस टाइम में वो भी एक बहुत डिवोटी है कृष्ण का, भगवान का। The only super animal like man are not the devotees, birds, animals, lot of creatures, they also are the creations of God and they are also devotees. So Mother Bharatya was an ardent devotee of Bhagavan Krishna. जिस टाइम ने वो सुना तो वो प्रार्थना से, एक बोलना नहीं पड़ता है, भगवान को भाव से कनेक्ट किया जाता है। तो वो भगवान को प्रार्थना करके बोला, प्रभु मेरा दोष क्या है, मेरा कसूर क्या है? तो मैं आज अंडा दिया एक लोनली प्लेस, एज फॉर द लॉ वी आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीबॉडी, I chose a secluded place, I chose a thorny bush, that is away from the जनबसती, पर मुझे विदाउट एनी फॉल्ट मेरा काल युद्ध होगा तो मेरा बच्चे का क्या होगा, मुझे वो दंड क्यों दे रहा है? तो भगवान ने इसको आंसर किया, डोंट वरी आई विल प्रोटेक्ट। यस, युद्ध होने के लिए महाभारत युद्ध, जो यू नो that is one of the bloodiest war in the human history, and the consequence was catastrophic. The war first started from this Mahabharat युद्ध में। तो वो बोला, भगवान ने बोला, प्रेयर को ग्रांटेड किया, डोंट वरी आई विल प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। तो एंड यू लिव द प्लेस, आई विल टेक केयर। You leave the place, I will take care. You protect your life, I will protect your child. You might be at a loss to hear this. भर्तिया एक छोटा सा, इसका वजन 50 ग्राम 100 ग्राम भी नहीं होगा, वो छोटा सा चिड़िया, इसका अंडा का वजन भी 10 ग्राम 25 ग्राम होगा। महाभारत युद्ध आएगा, इसमें हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र का लड़ाई होगा। थाउजेंड्स ऑफ वीर रथी महारथी वीर महावीर वो सब रक्त नदी में चला गया। तो हाउ दिस 2 or 4 small eggs of a small bird, how will it be protected? Listen, तो महाभारत युद्ध का शुरुआत सेकंड एज फॉर शेड्यूल आरंभ हुई। तो पहले गज वाहिनी का मार्च आया। पहले गज वाहिनी का जो मार्च जिस टाइम में आया, एक गज एक एलिफेंट से बैक से बहुत बड़ा घंटी, ऑल एलिफेंट के एज फॉर डेकोरेशन और फॉर अदर पर्पसेस, घंटा 10 किलो 50 kg ऐसे बड़ा बड़ा घंटा आप देखा होगा टेम्पल में। ये वो घंटा एक गज का नेक में डेकोरेशन के लिए और फॉर अदर पर्पस, फॉर गिविंग वार्निंग और फॉर साउंड लगा हुआ था। जिस टाइम ने वो गज का वाहिनी ने हर्ड ऑफ एलिफेंट्स और ए फ्लीट ऑफ एलिफेंट्स, दे मार्च्ड फास्ट थ्रू दैट एरिया। एक बड़ा घंटा, इसका घंटा का नेकलेस आप बोल सकता है, इसका एक रोप और ऐसा से टाई अप होके तो घंटा लगेगा। तो वो टोटल यहां से छिड़ गया, जस्ट से बूस के ऊपर छिड़ गया। एंड इट ऐसा प्लेस पे छिड़ा तो इतना बड़ा घंटा
अब पीतल का जो घंटा है, ब्रास मेटल का जो घंटा है, इसका वजन भी 15 किलो, 20 केजी, 50 केजी, 100 केजी भी हो सकता है। तो इतना बड़ा घंटा वो यहाँ से छोटा सा बूस के ऊपर पड़ा, तो पड़ा तो वो टोटल वो नेस्ट को कवर कर दिया, टोटल कवर कर दिया। वो गल चला गया, बाहर चला गया, शुरू हो रहे युद्ध होना है, तो कौन देखता है क्या हो रहा है इसमें, छोटा छोटा बात, तो चला गया, तो युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ हुआ, आप देखो तो कितना रथी महारथी, द्रोणाचार्य जैसा महारथी, भीष्म जैसा महारथी भी टल गए। थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स वीर महावीर वो सब वीर गति प्राप्त हो ले, तो वेरी फ्यू पीपल सर्वाइव्ड। तो महाभारत युद्ध का अंत हो गया। महाभारत युद्ध जिस डेट में अंत हो गया, वो 2 दिन के बाद युधिष्ठिर ने एक घोड़ा में बैठ के, जो सब पड़ा हुआ इस बार रिलेशन, इसका अंतिम संस्कार अच्छा से हुआ कि नहीं, इसको देखने के लिए एक घोड़ा में बैठ के आ, और इसको फॉलो करने भी महाराज युधिष्ठिर को अदर घोड़ा वाहिनी आए। तो सेम प्लेस में जहां से इतना बड़ा घंटा पड़ा था, द लेग ऑफ द हॉर्स हिट दैट बेल, मालूम होता है, हिट दैट, एंड वो बेल ऐसे उलट गया, तो घोड़ा भी यहां से रह गया, ऐसा उलट गया। ऐसा देखिए, महाभारत युद्ध का अवधि 17 डेज था, 17 दिन, और 20 डेज, 21 डेज जनरली एज फॉर साइंस, एक आप जो चिकन का अंडा भी है, मदर चिकन यहाँ से ऊपर बैठ के इसको रियर करता है, उसमाता है, और वो जो प्रोटेक्टिव कवर, प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला इस नेस्ट के ऊपर था, अंडा इसमें अंदर इतना महाभारत का युद्ध के घनघटा में भी सुरक्षित था, और उल्ट गया तो आप यहां से बहुत अच्छा चीज देखा, तो 2 छोटा छोटा चिड़िया का बच्चा यहां से ऊपर से उड़ गया, और मदर बर्ड ने वॉच करके, जो वॉच करके रहता है दूर से, और एक बड़ा पेड़ में बैठ के वॉच कर रहा था, तो जिस टाइम ने वो ऊपर उड़ा, तो वो आ गया, भगवान को नमस्ते किया, और इसको साथ दे के सेफ प्लेस को ले लिया। देखिए भगवान का वरदान कैसा होता है, वो भगवान प्रोटेक्शन करते तो, भगवान प्रोटेक्शन देता है, तो महाभारत युद्ध जैसा इतना बड़ा घना घटा होना के बाद भी, जहां से थाउजेंड्स रथी महारथी मर जाता है, द्रोणाचार्य भीष्म मर जाता है, कर्ण मर जाता है, यहाँ से छोटा से 2 भर्तिया पक्षी का बच्चा भगवान चाहे तो बस था। वो महाभारत का युद्ध होना का पहला का स्टोरी। आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। तो दिस इज द टीचिंग। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुपर सर। अब क्या लर्न किया आप लोग ने इसमें, क्या लर्न किया? What you learned? I have told that why it is relevant, why the stories that is described in Mahabharata, why it was relevant, is still relevant, will be relevant for ages to come. Yes sir. First of all, faith in God. Yes. And very fine. Yeah, every moment in God is pray and related to every moment. God कहते नहीं है कि गॉड चाहता तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो सबसे पहले फेथ की रिक्वायरमेंट है सबसे ज्यादा, और उसके बाद तो गॉड तो सभी पे अपनी दृष्टि रखता ही है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, ऐसा कहा जाता है। तो काफी अच्छा लगा आपको सुनकर। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। अनदर थिंग, महाभारत का
में बीच बीच में कुछ कुछ कहानी बोलेंगे और महाभारत का कुछ क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तो इसमें तीनों चीज हमको शॉर्ट टाइम मिलेगा। जो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, फुली डिवोटेड, भगवान ने बार बार बोला है, जो ऑलवेज वर्क एंड गॉड ओवरहेड्स। आप वेस्टर्न राइटर्स मिल्टन और एजरा पाउंड, जो बड़ा बड़ा लेखक है, इसका पोएट्री में भी आप देखो, वो बोलता है आप काम करिए लेकिन भगवान को हर टाइम नजर में रख के आप आगे बढ़िए। एंड इफ यू आर डिवोटेड एनफ, ये अनफ्लिंचिंग डिवोशन इसको बोला जाता है। इसका बहुत मशहूर हिंदी वर्ड हो सकता है, मुझे मालूम नहीं। अनफ्लिंचिंग डिवोशन, अनकंडीशनल डिवोशन, and you have unconditional devotion for God, and you work according to the dictates of your conscience. Very important. If you walk and work according to the dictates of your conscience, you follow the path of ethics, follow the code of conduct as laid down by in our scriptures, in our teachings, in the philosophy and teachings of all teachers of all gurukulas, all revered teachers. They have taught us the ethical teachings. If we follow these things, what will happen? You will be peaceful, family will be peaceful, society will be peaceful, and it will lead to a peaceful world. You know, before 100 years or 300 years, before the Mughal rule, even during the Mughal rule in India, before Mughal rule, you know that Gupta Yug. Gupta Yug was the golden era of the world. वो हमने नहीं लिखा है, फॉरेनर्स जो हमको इतिहास को विकृत करके लिखा है, फिर भी कुछ कुछ सत्यता दिया है। इसमें लिखा है गुप्त युग भारतवर्ष का सुवर्ण युग है। इस टाइम ने क्या था, इतना तो साधन नहीं था हमारे पास, तो वो सब वीडियो नहीं था, इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, मोटर व्हीकल नहीं था, इतना पैसा नहीं था। फिर क्या था इसमें गोल्डन एज? बिकॉज पीपल वेल मोरली हाई, their morality was high. Second one, they had learned how to live with basic minimum. I am quoting one thing from Mahabharata. जिसको महात्मा गांधी ने भी कोट किया है। So this world is enough for everyone's need. Mind the word. This world is enough for everyone's need, but it is not enough for even for a single man's greed. If one man will be dissatisfied, तो इसका ग्रीड होगा, जो एंटायर वर्ल्ड का जितना भी जगह है इसको नीड होगा। वो बोलेगा, मैं आपको एक स्टोरी बोलता हूँ इसमें। तो अब लियो टॉल्स्टॉय को जानना, लियो टॉल्स्टॉय का एक कहानी, एंड ही हैज डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन कल्चर। इसमें इसका एक लेखा है जो हाउ मच लैंड ए मैन रिक्वायर, दैट इज महाभारत में लिखा हुआ है दूसरा कहानी। तो लियो टॉल्स्टॉय ने इसको मॉडर्न सेट करके लिखा है। तो जिस टाइम ने लोक संख्या बहुत कम था, एट दैट टाइम एक मरु क्षेत्र था और इसके पास एक आदिम था इस एरिया का, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड मालिक था। देयर वाज नोबडी टू कंटेस्ट हिज सुप्रीमेसी, सो
a vast, some thousands of kilometers of areas, semi-deserted place. He was the owner, and he was selling the property. If somebody will give him some gold coin or some foods he require, then he will sell some portion of land. One day, a gentleman came. One condition was there. Somebody will come in the morning and इसको कुछ टाइम दिया जाएगा, 4 hours, 2 hours, 3 hours, और जो आदिम का मर्जी, अब कितना रास्ता कवर कर सकता है, कितना टाइम लेंगे, तो इफ यू विल कवर एंड गिव मार्क्स. एक आदिम आया, वो आदिम के पास बहुत कुछ सोना का कॉइन्स था. वो एक बाउल फुल करके एक सोना कॉइन लेकर आया, वो दिया. तो बोला मैं सुबह जाऊंगी तो अपराह्न के पहले आ जाए. उन्होंने बोला नहीं, इतना टाइम क्या करेंगे आप, जो ओनर बोला. तो ना आप मैं इतना सोना दिए, मुझे कहीं आपका कंडीशन ऐसा है, मैं अप टू आफ्टरनून somebody can come. ओके, हाफ एन आवर 2 hour नहीं होगा ना, मैं लेता हूँ अप टू 12:30 लेता हूँ. I have told you that it is a semi-deserted area. So this man जितना रास्ता, जितना एरिया वो कवर करके मार्क दे देगा, इस एरिया इसका हो जाएगा. वो ऐसा ही कंडीशन. वो आदिम चला, आदिम पहले चला, एक डायरेक्शन में गया, फिर वो डायरेक्शन से और दूसरा डायरेक्शन गया. इस डायरेक्शन में देखा तो वो जो डायरेक्शन में आ गया, वो डायरेक्शन से कनेक्ट नहीं करता है. फिर क्या किया, वो डायरेक्शन से बहुत आगे गया. वो गया, दिस एरिया में हमारा फील्ड होगा, दिस एरिया में हमारा चास का खेत होगा, इसमें में हमारा माहौल होगा, इसके हमारा सन का महल होगा, इसमें हमारा सेकंड सन का माहौल होगा, इसमें थर्ड सन का माहौल होगा. फिर वो चिंता किया, इसका हमारे जो ग्रैंड सन्स होगा, ग्रैंड सन का माहौल होगा, ग्रैंड सन में तक बहुत बड़ा एरिया का मालिक हो गया. हमको वो तो लगभग 100 एकड़ हो गया, 200 एकड़ हो गया, सपोज 1000 एकड़ होगा, तो क्या होगा, मैं लैंडलॉर्ड बन जाएगा. तो दासे आएंगे, सर्वेंट्स आएंगे, सर्वेंट्स क्वार्टर बनाना होगा. तो फिर देखा, घुमा, वो देखा, और तो सर्वेंट्स का भी कुछ फैमिली रहेगा, इसके लिए भी खेती बाड़ी चाहिए. तो हमारा एक बहुत बड़ा लेक रहेगा, वो लेक में मछली रहेंगे, मैं मछली भेजेंगे, ऐसा करके. और एट दैट टाइम ही फेल्ट थर्स्टी. तो जितना पानी लेके गया था पी लिए, फिर दौड़ा. तो इस टाइम, एट दैट टाइम द प्लेस वेयर ही हैज कम इज ऑलरेडी क्रॉस सम किलोमीटर्स, 20 kilometers or 5 kilometers or 10 kilometers. तो इसको फिर रिटर्न करना होगा. जो जिस टाइम ने वो रिटर्न आया, तो दो टाइम ने देखा मिरेज. टाइम ने इतना वो तंटी में आ गया, सोच आ गया. तो पीने के लिए पानी खत्म. पानी ये तो जिस टाइम ने पानी नहीं मिलेगा डेजर्ट एरिया में, गर्मी के मौसम में, आपके पास जितना भी सोना होगा, जितना भी ज्वेल्स होगा, कुछ फायदा ही नहीं है. तो इसका आंखों में मिरेज आ गया. वो दौड़ा, ये जो पानी है, इसके पानी है, इस पानी है, दौड़ा, ऐसा चित्कार करके दौड़ा. तो फिर सोचा, अरे हमको तो फिर और हाफ एन आवर रहा, इसके सूर्य आ गया माथा के ऊपर, हमको पहुंचना होगा, नहीं तो वो लैंड चला जाएगा. तो फिर दौड़ने लगा. लेकिन वो दौड़ के जितने भी आया, वो लैंड तक, वो लैंड ओनर के पास नहीं पहुंच सका. He could not reach. He died on the road. जो आफ्टरनून में जिस टाइम में सनसेट हुआ, तो वो जो लैंड ओनर आया, तो इसको 4 हाथ का एक लैंड डी करके, along with some of his workers, तो क्या किया, 4 हाथ
4 feet or 4 meters, whatever may be, 4 meters का और 6 meters का एक लैंड को डिग करके इसको यहां से दफना दे दिया, बरीड। तो स्टोरी है जब हाउ मच लैंड ए मैन नीड, तो इसको ओनली 6 हाथ लैंड चाहिए। इफ यू नीड, इट मीन्स आपको 6 हाथ ही चाहिए। वो आदमी सुबह से 11 बजे तक ओनली दौड़ा, तो जितना किलोमीटर दौड़ सकता है इतना दौड़ लैंड इसका हो जाए। बट ही कुड नॉट रीच हिज डेस्टिनेशन, नॉट ए सिंगल ऑफ लैंड, इंच ऑफ लैंड ही कुड ऑक्युपाई इन हिज लाइफ। वो है स्टोरी। तो महाभारत में है कि ग्रीड को आपको कंट्रोल करना। थिंग इज दैट ग्रीड, आई टोल्ड दैट इफ दिस वर्ल्ड इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। ए सिंगल मैन को ग्रीड आ जाएगा तो एंटायर वर्ल्ड भी इसको अंटेगा नहीं। इट विल बी fell short of each expectation. Am I audible? Yes, yes, surely. Okay. Yes, sir. Yes. So Yes, sir. Yes, sir. yeah, this is the second teaching. That means you have to control the greed in Mahabharata. True, absolutely right. Another thing is that you have to control the ego. आपका अंदर जो ईगो है, ईगो को आप हर टाइम बस में रखना है। महाभारत में हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स आते हैं, तो जहां में जितना भी ईगो जिसका जितना बढ़ता है, वो भगवान ने इसको ऐसा ही अच्छा टीचिंग दिया है। एक कहानी में महाभारत से सुना। तो ईगो कैसे है, भगवान सब कुछ सहन करता है लेकिन ईगो सहन नहीं करता। जिसका जितना भी ईगो है वो ईगो को वो यहां से ही अच्छा टीचिंग से जरिए इसका मगज को देता है। आप देखिए हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज, मैं एक स्टोरी बोलता हूं। युद्ध के टाइम में आपको श्री कृष्ण का, अर्जुन का रथ में आप देखिए श्री कृष्ण वाज द सारथी एंड कर्ण वाज फाइटिंग अर्जुन। कर्ण के साथ भी बहुत दिव्यास्त्र था। कर्ण के पास तक्षक, द किंग ऑफ स्नेक्स आ गया, क्योंकि एक कहानी है जो अर्जुन ने खांडव वन, दैट मीन्स खांडव वन को दहन कर दिया था। तो सेटिस्फाई अग्निदेव वो खांडव वन को दहन कर दिया था। तो ये खांडव वन में जितना पेड़ था वो तो जल गया, बहुत प्राणियों में भी जल गया, और स्नेक्स ऑल्सो डाइड बिकॉज अग्निदेव को एक अभिशाप था। वो खांडव का दहन के बाद वो अग्नि तो खाता है, अग्नि क्या खाता है, वो जला के खाता है। इसका ही जनरली टेक द स्मेल ऑफ दैट अग्नि। तो यज्ञ में जो स्मेल आता है वो स्मेल को अग्नि इनहेल करके सेटिस्फाइड होता है। तो इसका जो अभिशाप था, इस अभिशाप को ओनली खांडव वन का दहन होने के बाद, खांडव वन में बहुत हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स था, वो प्लांट सब एक साल जल के जो हवन होगा, इसमें में जो स्मेल आएगा, इस स्मेल को वो इनहेल करे तो यू विल बी क्यूर्ड ऑफ ऑल हिज एलिमेंट्स।
So he took the help of Arjun, because whenever Agni was trying in his own part to eat that jungle, Indra was opposing that, and इंद्र के पास क्या होता है, इसका वर्षा होता है, तो बारिश करके वो आग को लिभा देता. तो he took the help of Arjun, so that Arjun आर्टिफिशियली क्लाउड करके इंद्रदेव जितना वर्षा भयंकर झड़ तूफान किया, इसको प्रतिहत करके अस्त्र से एक कवर बना दिया, तो अग्नि टोटल वन को दहन कर दिया. मैं वो बात में नहीं जाता हूं, मैं ईगो कैसे हम पर होता है वो बात में करता हूं. तो ऐसा इन तक्षक का वंश चल गया. तक्षक वो दिन प्रतिज्ञा कर लिया, तो मैं जिस भी हालत में हूं अर्जुन को मारेंगे. लेकिन अर्जुन को मारना इतना आसान नहीं है. वो महाबली है, वो भगवान का छत्र छाया में है, और ही इज द बेस्ट धनुर्धर है. तो इतना बड़ा धनुर्धर है जो इंद्र भी इसको वरदान दिया है. तो इतना बड़ा आदमी को तक्षक एक स्नेक जितना पावरफुल है, इसको नहीं सम्मुख युद्ध में हरा नहीं सकता. तो तक्षक ने आके कर्ण के शरण लिया, ये आप मुझे सार में अर्जुन का रात तक. सर मीटिंग 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. हाँ ठीक है, अर्जुन का युद्ध तक प्रेरण कर दीजिए, तो मैं टोटल रथ को I will devour it. I will devour the entire chariot. वो बोला. कर्ण ने बोला इतना आसान नहीं. वो इस युद्ध में स्वयं भगवान को रथ में स्वयं कृष्ण भी है, और इसका ऊपर हनुमान बैठता है, तो आप कैसे डिवोर करें. कहले मैं इतना पावरफुल है, भगवान कृष्ण को छोड़ के और सबको गिल देंगे. कर्ण इसको धनु के ऊपर रख के गुण चढ़ाया, और वो उड़ उड़ के चला गया. इस टाइप में तक्षक आया, तो हनुमान ने वो चैरियट को पाताल को चाप दिया. लेकिन वो तक्षक को गुमराह करने के लिए एक फ्लैग ओनली हलते रहा, एंड तक्षक आया, वो फ्लैग को डिवोर करके चला गया. वो जानने के बाद फिर हनुमान ने ऊपर से एज पर फिर ग्राउंड को आ गया. तो तक्षक यहां से बोला देखो मैं सब खा दिया. तो युद्ध खा लिया, ठीक है. कर्ण ने बोला, अदर महारथी ने बोला, विष्णु ने बोला तुम खा लिया. हाँ मैं खा लिया. ठीक है, क्या खाए देखो. वो उगाला तो कुछ रेड रिबन्स और रेड क्लब्स ओनली आया, और कुछ नहीं. वो सोचा मैं अर्जुन को हजम कर दिया. अर्जुन को हजम करेगा. हाँ, जो भगवान का वरदान में है, इसको कोई हजम नहीं कर सकता. तो तक्षक शाही को यहाँ से चला गया. तक्षक इसके नमस्ते करके प्ले ग्राउंड छोड़. तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपने 3 चीजें आज हमको सिखा है. एक तो हो गया कि ग्रीड, सेकंड वाला जो आपने बोला, थर्ड वाला जो है आपका ईगो, और जो फर्स्ट वाला क्या था दीपक जी?